Good morning, dear student. Today we will learn the Unit 3 Session 3, that is ICT tools. Okay, now in ICT tool we will learn the mobile device, and this is the layout of mobile devices. Now, first option on your mobile is power button. In by you, what you will do from your power button, you will start or shut down your device, as well as there are the option to reboot your device, and you will set your device on airplane mode. Okay, now second is screen. This is the screen. This screen works as a input and output both. You can use this screen for displaying the output. You will see anything, your movies, your videos on that screen. And if you want to give some input by touching your screen, you can give also. Okay, so this screen will work both as a input as well as output device. Okay, so generally the screen is a graphical display that provides output of the device. A screen in a smartphone can also be an input device, helping user to make selection based on touch. Okay. Now back button. By using the back button, you will go on the previous application. Now by microphone is used to. It is located at the bottom, and by using that you can listen the voice in the digital form. Okay, microphone. Menu bar. This menu, when pressed, displays the available option. All the available apps are present in the menu bar. Okay, home button. It is the button that takes the user at the home screen of the device. Okay, it's quite obvious. Wherever you are, if you press the home button, it will come on the home screen, the basic screen. Earpiece. It is an output device that produces sound, allowing the user to listen to the voice calls received. Okay, by using this option, it is also producing the sound. What is the difference between microphone or earpiece? Okay, in earpiece, whatever you are saying, it is converting into a digital signal. मतलब whatever you are speaking, it whatever you are saying, it is understand by your mobile. But what is earpiece? ठीक है, allowing the user to listen the voice. It is converting the digital signal into a voice. That voice you hear from your mobile, it is by using the earpiece. And whatever you say, eh, it is understood by your mobile with the help of microphone. Okay, now volume button, you know that you will increase or decrease the level of your volume. Now, basic features of mobile. Now, chargeable battery. We know that our mobile works on the battery, but we all know that what is use of battery. Okay, so mobile phone works on electricity provided by a battery. The battery is such, once exhaust, a user can simply charge it and continue to use the device. Touch screen. Touch screen is an input device. I am telling you. ठीक है. Touch screen and screen is a different thing. Screen is the output device and touch screen is the input device. If I say touch screen, what does it mean? I am touching. I am giving input. If I am saying only a screen, what does it mean? I am taking the output. So touch screen enables the instruction to be given to a device in the form of a touch. This screen also displays the data output produced by this device. It allows you to read, text a movie and games. Okay. All in all, we can say we can use the touch screen for both purpose, for input and output, but basically touch screen is the input device that you must know. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा नहीं लिखोगे कि बोथ. अगर टच स्क्रीन पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आंसर होगा इट इज द इनपुट डिवाइस. नाउ हेडफोन जैक. इट इज अ जहां पर आप अपने हेडफोन को प्लग इन करते हो. A touch screen enables the instructions to be given. Sorry, headphone jack. The modern smartphone are often manufactured with a 3.5 mm jack. ठीक है, जो आपके हेडफोन जिस पे आप प्लग इन करते हो उस पर्टिकुलर है जो आप पोर्ट का नाम क्या है, 3.5 mm जैक. उसको क्या बोला जाता है? 3.5 mm जैक बोला जाता है. ठीक है. Now Bluetooth. Bluetooth जो होता है आपका, it is, you know that it is a wireless technology. By using Bluetooth you can share your file,
you can connect your mouse, your speaker, your headphone with the help of Bluetooth. But the range of Bluetooth is 30 feet. What is the range of Bluetooth? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, what is the range of Bluetooth? The range of Bluetooth is 30 feet. Okay. USB C पोर्ट, USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, और USB C पोर्ट की होती है यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टर पोर्ट. ओके, सो दिस पोर्ट हेल्प्स यू टू कनेक्ट a USB device to smartphone. USB devices which are now built to be compatible with smartphones include thumb drives, card readers, USB कीबोर्ड एंड सो ऑन. ठीक है, तो आज की डेट में आपके पास इसको यूनिवर्सल सीरियल बस क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप सिर्फ एक ही पोर्ट होता है यूएसबी, आप उससे अपना माउस भी कनेक्ट कर सकते हो, कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हो, अपनी पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो, अपने कार्ड ड्राइव, अपना कार्ड रीडर कनेक्ट कर सकते हो. तो सारे डिवाइसेस के लिए मल्टीपल पर्पस के लिए हमने एक सिंगल पोर्ट बनाया है, इसलिए उसको यूनिवर्सल सीरियल बस बोला जाता है, इसलिए वो यूनिवर्सल पोर्ट है. USB is also called a universal port बिकॉज हम सारे काम के लिए क्या, ऑल्दो आज की डेट में अगर आपको अपना मोबाइल चार्ज भी, अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप अगर चार्ज करना है तो उसके लिए भी आप USB पोर्ट का यूज कर सकते हैं. ठीक है, वाईफाई, सभी के मोबाइल पे वाईफाई होता है. वाईफाई इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स टू कनेक्ट द डिवाइस ऑन द इंटरनेट. फॉर इंटरनेट पर्पस हम वाईफाई का यूज करते हैं. कैमरा, वी नो दैट कैमरा का यूज क्या है, टू कैप्चर फोटोज एंड वीडियोस. क्लॉक हम सबको पता है इसका यूज क्या है, टू टेकिंग टू सी द टाइम अकॉर्डिंग टू सी द रीजनल टाइम. सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी, आपके मोबाइल में जो सिग्नल आते हैं, ठीक है, आपके मोबाइल से आप जो नॉर्मल कॉलिंग करते हो, ठीक है, या आपके मोबाइल में जो नॉर्मल मैसेजिंग करते हो, वो कैसे पॉसिबल है, बाय यूजिंग अ सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी. So when connected to a local carrier network, a mobile device can perform some of its basic function. This includes making call or sending text messages. However, modern cellular network also provide access to the internet. ये आपको इंटरनेट की आज की डेट में फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. अगर आपका फोन स्मार्ट नहीं है, अगर आप उसमें अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो वो आपको क्या करेगा, एक मोबाइल नेटवर्क कवरेज प्रोवाइड कराएगा, जिसके हेल्प से आप कॉलिंग और मैसेजिंग कर सकते हो. बट अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप उसके हेल्प से इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हो. जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि आप किसी भी की लोकेशन ट्रैक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जीपीएस. और ठीक है, तो ये क्या है, आपका बेसिक फीचर्स है मोबाइल डिवाइसेस के, जिसके ये सारी फीचर्स को आप यूज कर सकते हो अपने मोबाइल में. Now, some basic gestures in mobile. सबसे पहला जेस्चर होता है टैप. टैप मतलब आप सिंपली जब अपनी स्क्रीन पे क्लिक करते हो, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, टैप बोला जाता है. और टैप का जो यूज होता है, अ टैप इज अ टचिंग द स्क्रीन विद अ फिंगर फॉर अ वेरी ब्रीफ मोमेंट. हल्का सा, ऐसा नहीं कि आपने उसको रखे, आपने टच किया और आपने उसको रिलीज नहीं किया, हल्का सा आपने उसको टच किया और तुरंत क्या कर लिया, उसको रिलीज कर दिया, उसको क्या बोला जाता है, टैप बोला जाता है. A tap is commonly used to activate an element on the screen. ठीक है, किसी भी एलिमेंट को अगर आपको एक्टिवेट करना है, किसी भी आपको स्क्रीन पे किसी भी एप्लीकेशन को अगर आपको ओपन करना है, तो आप क्या करते हो, उसके लिए आप टैप का यूज करते हो. फिर आता है आपका डबल टैप. डबल टैप आप क्या कर सकते हो, दो बार आप अगर टैप करोगे बहुत ही क्विकली टाइम पे विदाउट एनी डिले, तो आपको डबल टैप होता है, और उसको उसके हेल्प से आप जूम कर सकते हो. ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, जनरली जूमिंग के लिए आप उसका यूज कर सकते हो. और अगर जनरली क्या होता है, आपको अगर किसी फाइल को रिनेम करना है, या आपको लेट अस सपोज किसी ऐप को ओपन करना है जो सिंगल टैप में ओपन नहीं हो रही, तो आप उसको आप क्या कर सकते हो, उसको डबल टैप से भी क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो. वैसे जनरली आपकी जितनी भी ऐप है वो सिंगल टैप से ओपन होती है, बट अगर समटाइम्स अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप डबल टैप का यूज भी कर सकते हो. ठीक है, और जनरली अगर हम बात करें डबल टैप का यूज, तो आप जूम इन जूम आउट के लिए होता है. अगर आपकी कोई भी पीडीएफ फाइल, कोई भी इमेज अगर आपके शॉर्ट फॉर्म में है, अगर आपको उसको लार्ज करना है, लेट अस सपोज आपकी कोई गैलरी में कोई इमेज है, ठीक है, और वो शॉर्ट फॉर्म में है, अगर आपको करना है तो आप उसको डबल क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हो. ठीक है, या आप व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई मैसेज आता है, ठीक है,
आपको स्मॉल टाइप में होता है, तो आप उसको ओपन करने के लिए भी क्या कर सकते हो, डबल टैप का यूज कर सकते हो। ठीक, तो समटाइम्स डबल टैप और सिंगल टैप सिमिलर होते हैं, बट आप जनरली अगर आपको किसी फोटो को लाइक करना है या किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो वहां भी आप डबल टैप का यूज कर सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन दी एप्लीकेशन कि वो आपको सिंगल टैप आपसे डिमांड करती है, डबल टैप डिमांड करती है। टैप एंड होल्ड, ठीक है, आपको आप लेटर सपोज टैप कर रहे हो, टैप करके आपको होल्ड ही करके रखना है। ठीक है, अब जनरली आप इसका यूज कर सकते हो टैप एंड होल्ड, यूजर टचेस द स्क्रीन एंड होल्ड द फिंगर एट इन पोजीशन, मतलब आपको टैप तो करना है पर आपको अपनी फिंगर को रिलीज नहीं करना है वहां पर। दिस ओपन द अवेलेबल मेन्यू फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ एन ऐप। अब जैसे आपको किसी भी ऐप की सेटिंग में जाना है या उसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है, तो आप उसको टैप करके होल्ड करते रहोगे, तो वहां पर आपका एक पूरा की पूरी आपके उससे रिलेटेड की एक प्रॉपर्टी विंडो खुल जाएगी। ठीक है, अब आपके मोबाइल पे आप अगर चाहो तो आप अपना मेन्यू बार खोलो, आप किसी भी ऐप को प्रेस करके रखो, तो आपको वहां पर एक बॉक्स खुल जाता है और उसके थ्रू आप उस ऐप की प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हो। तो वो क्या होता है, आपका टैप एंड होल्ड होता है। स्वाइप, स्वाइप आप जनरली यूज करते हो, लेफ्ट स्वाइप होता है और राइट स्वाइप होता है। ठीक है, अगर आपके मोबाइल पे अगर बहुत सारी ऐप है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको लेफ्ट या राइट स्वाइप कर सकते हो, या आपके लेट सपोज बुक में आप नंबर ऑफ पेजेस को स्वाइप करते हो, नेक्स्ट पेजेस, तो जनरली नेक्स्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्वाइप का यूज करते हैं। पिंच क्लोज, ठीक है, आपने क्या करना है, दोनों स्क्रीन को आपको रखना है और आपको अपनी स्क्रीन पर रखना है, और दोनों को या तो आपको दोनों स्क्रीन को आपको स्प्रेड करना है या आपको उनको क्लोज करके नैरो करना है। ठीक है, ये जनरली यूज होता है आपका जूम करने के लिए। तो आप देख लेते हैं क्या होता है, आपका पिंच क्लोज सिमिलर टू दी डबल टैप, दिस जेस्चर इज यूज्ड टू जूम आउट। ठीक है, पिंच क्लोज करेंगे तो जूम आउट करने के लिए होता है आपका स्क्रीन, और पिंच ओपन करेंगे तो वो जूम इन करने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो दोनों का यूज होता है, या आपकी कोई भी आपकी इमेज अगर बहुत स्मॉल उसमें है, अगर आपको उसको लार्ज फॉर्म में लेके आना है, तो आप पिंच ओपन का यूज करेंगे, और अगर बहुत लार्ज में उसमें है और आपको स्मॉल में लेके आना है, तो आप क्या करोगे, पिंच क्लोज का यूज करेंगे। ठीक है, जनरली अगर मैं बात करूं आपकी जो गैलरीज है, वहां पर आप यूज करते हो, अगर आप उसको वो करोगे पिंच करके, अगर आप उसको दोनों को स्प्रेड करोगे, तो आप देखोगे कि अलग तरह से बिहेव कर रहा है, वो आपकी इमेजेस जूम आउट हो रहा है, अगर आप उसको करोगे तो नैरो करोगे तो वो आपका जूम इन हो जाएगा। ठीक है, पिंच क्लोज similar to double tap, this gesture is used to zoom out of the screen. Here a user presses two finger, यहाँ पर जैसे डबल टैप में आप सिंगल फिंगर का यूज करते हो, बट जो पिंच क्लोज में आपको दोनों फिंगर की रिक्वायरमेंट होगी, दोनों फिंगर को साइमल्टेनियस। डबल टैप में क्या होगा, आप दो बार क्विकली करोगे, बट कहीं ना कहीं दोनों टैप में क्या होगा, डिले होगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों फिंगर आप एक साथ स्क्रीन पर रखोगे, दोनों को साइमल्टेनियसली क्या करोगे, आप दोनों को वर्क करोगे। अगर दूर लेके जा रहे हो तो दोनों फिंगर को एक साथ दूर लेके आओगे, जब पास लेके आना तो दोनों को एक साथ पास लेके आओगे। So here a user presses two fingers simultaneously and slide them close to each other, मतलब close में क्या करना है, दोनों फिंगर को क्लोज लेके आना है। ठीक है, अगर दोनों फिंगर को आप क्लोज लेके आओगे तो वो क्या होगा, आपका जूम आउट होगा। और पिंच ओपन में क्या करोगे, सेम प्रोसेस है, दोनों फिंगर रखिए स्क्रीन पे, बट आप दोनों फिंगर को क्या करोगे, एक दूसरे से दूर लेके जाओगे, तो वो क्या करेगा, जूम इन करेगा। ठीक है, दिस जेस्चर इज यूज्ड टू प्रेसिंग टू फिंगर्स एंड स्लाइडिंग देम अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इट परफॉर्म जूम इन एंड मेक ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन अपीयर लार्जर, मतलब वो बड़े हो जाते हैं। आप अपनी गैलरी पे भी जाके अगर दोनों दोनों स्क्रीन आपने दोनों फिंगर आपने रखी है और आप दोनों को एक दूसरे से दूर लेके जाओ, तो जूम इन हो रहा होगा, और अगर आप उनको पास लेके आओगे तो जूम आउट हो रहा होगा। नाउ फ्लिक और स्क्रॉल, स्क्रॉल जनरली क्या करते हैं, जैसे आपका ये पेज है, ठीक है, ये क्या है, आपका स्क्रॉल है, अगर आप धीरे धीरे करोगे तो क्या है, आपका वो स्क्रॉल होगा। बट लेट अस सपोज आप आपके कॉन्टेक्ट में क्या है, 200 नंबर है, और आप अगर हल्का हल्का स्क्रॉल करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। आप क्या करते हो, जल्दी से एक बार उसको ऊपर को कर लेते हो, तो जल्दी से क्या होता है, वो भागना स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो क्या है, एक्चुअल में फ्लिक है। अगर आप धीरे धीरे कर रहे हो तो वो स्क्रॉल होगा, लेकिन अगर आपने एक साथ उसको ऊपर कर लिया और तुरंत वो एक साथ भागने लग गया, तो वो क्या बन जाएगा, आपका फ्लिक बन जाएगा। तो स्क्रॉल एंड फ्लिक दोनों सिमिलर है। स्क्रॉल आप धीरे धीरे करते हो, आपका जो मूवमेंट होता है वो आपके कंट्रोल में होता है, और फ्लिक आप एकदम से करते हो, उसका मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं होता। ये जनरली फ्लिक आप तब यूज करते हो जब आपको बहुत सारे
एंट्रीज को विजिट करना होता है। अ फ्लिक इन्वॉल्व क्विक स्वाइपिंग of the screen from your finger. It shows the function to scroll on or pan quickly on the screen. ठीक है, तो सेम मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके जेस्चर होते हैं जो आप अपनी मोबाइल पे यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, सारे जेस्चर को आप यूज करिए। आप मोबाइल यूज करते हैं, उनको प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट करिए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू स्टूडेंट, एंड कीप लर्निंग।